Assalamu alaikum students. In the continuation of previous physical lectures, in today online lecture students, we are going to discuss the same topic, that is tablet dosage form. In physical class, we have covered that what are tablets and what are the characteristics of the tablets. And then we discussed the different types of tablets. So in that sequence, let's proceed the lecture further in this online class. We have discussed up to chewable tablets. Students, now in this class, we are going to discuss further types of tablets. The next one is students, buccal tablets. So let's start with the definition of the buccal tablets. Students, buccal tablets. These tablets are designed for placement under the cheek mucosa or between the lip and gum. Means these tablets will have to be placed in your buccal cavity. They are typically designed for slow release drug and absorption through the oral cavity or the upper GI tract. Buccal administration is used for local drug action or avoiding extensive degradation in the gut or metabolism in the liver. Students, those drugs that are really prone to the gastric condition of the stomach, or those drugs which pass through the systemic circulation, they must pass through the hepatic or liver, and there the metabolism of the drug takes place. Therefore, those drugs are designed in buccal tablets so that these two processes can be prevented to improve the bioavailability of the drugs. These tablets allow drug administration without water. Means for buccal tablets, we do not require any water. We will have to just place the buccal tablet between the lip and the gum in your buccal cavity. And after that, the drug will be released from these buccal tablets. Students, the API means the active pharmaceutical ingredients in buccal tablets should not be bitter and must be soluble. Buccal tablets have mucoadhesive component in the formulation and do not contain any disintegrant and are fairly soft. Means these tablets are soft, they do not contain any disintegrant, and there must be a mucoadhesive component. By mucoadhesive component, students, we mean that there will be a polymer or a substance in your formulation that will have the ability to adhere or attach with the mucosal layer of the buccal cavity. So buccal tablets are simple, means those tablets which you will have to place in your buccal cavity, and after that from the tablet the API will be released. And in these tablets, the active ingredient must not be bitter in taste or must not have sharp taste, which will be unfeasible for the patient. And the active ingredient must be soluble. The drug is released by dissolution from the surface. So the drug is released by the process of dissolution from the tablet surface. Student, examples of such a tablets are, or the active ingredients which are delivered through buccal tablets are testosterone. Means these tablets are mostly used for the hormonal replacement therapy. Fentanyl, which is a painkiller, nitroglycerin and meconazole are the examples of tablets used for buccal roots. So in short and simple form, we can say that buccal tablets are those tablets which have to be placed in the buccal cavity. After placing these tablets in the buccal cavity, the drug is released by the process of dissolution from the surface of the tablet. Why we formulate buccal tablets? We formulate buccal tablet to provide the local effect. You can also achieve the local effect, or you will have to protect the drug from the degradation in the gut, means GIT, or in the stomach, and to pass the first pass metabolism, means to improve the bioavailability of the drug. So these tablets are formulated. These are called buccal tablets. Let's proceed further. Next category, sublingual tablets. Students, these tablets are designed for placement under the tongue. They allow rapid drug release and absorption through the blood vessels under the tongue. Means there is a highly vascularized area of the vessels beneath the tongue,
beneath the tongue, and these vascularized vessels have the ability to absorb drug, means there will be increased absorption. These tablets also avoid gut and hepatic exposure. Sublingual administration is used for rapid onset of action. These tablets allow drug administration without water, means for buccal tablets and for sublingual tablets, these are actually the type of oral tablets. All the tablets are oral tablets, but their absorption takes place from the oral cavity, from the in which there are 2-3 categories like orally disintegrating tablets, sublingual tablets, and buccal tablets. So we have discussed buccal tablets. Now we are going to study the sublingual tablets, means these tablets will have to be placed beneath the tongue, and then the drug is released from the tablet. There is a highly vascularized blood vessels beneath the tongue, and these vessels absorbs the ingredient, the active ingredient from the formulation, which ultimately result in rapid onset of action. So these tablets allow drug administration without water, as it was the case with the buccal tablet. Let's proceed further. Students, the API or the active pharmaceutical ingredient should not be bitter and should be soluble, as that was with the case of buccal tablet. Typically, low dose drugs are formulated as sublingual tablets, means those drugs which are required by the body in very less quantity, they are formulated in sublingual tablets. Typically, sublingual tablets have soluble components in small size tablets. These tablets do not contain disintegrant and are relatively soft. The drug is released by dissolution from the surface, as same as that of the buccal tablet. Tablets of vitamin B12 and nitroglycerin are commonly used, and these are the examples of the sublingual tablets. Now the third category is orally disintegrating tablets. As the name is self-explanatory, student, these tablets are meant to be placed on the surface of the tongue and they are not to be swallowed. These tablets rapidly disintegrate within 1 minute, or you can say 60 seconds, and produce rapid onset of action. These tablets allow also drug administration without water. These tablets are useful for pediatric and geriatric patients with dysphagia, difficulty in swallowing. These tablets are formulated especially for the children and old people which have dysphagia, means feeling difficulty in swallowing a tablet dosage form. So this is the alternate way to facilitate or to increase the patient compliance by formulating orally dissolving tablet. This tablet do not require any water. Just the tablet will have to be placed on the surface of the tongue, and within 60 seconds the tablet will dissolve, or you can say disintegrate. These tablets are also called rapidly dissolving tablets, or you can also say that orally disintegrating tablets. Students, the formulation usually contains super disintegrants because these tablets will have to be disintegrate within 60 seconds. So super disintegrants are usually incorporated in the formulation of orally disintegrating or orally dissolving tablets. Students, the API or the active pharmaceutical ingredient or the core drug must not have sharp or bitter taste. Students, these tablets are also designed for the low dose of the drug. Examples are clonazepam tablets, or you can also administer different categories of drugs like painkillers can also be administered through orally disintegrating tablets. Now, student, in this category, we have discussed up till now 3 types of tablets. Buccal tablets. By buccal tablet, we means वो tablets जिसको हम अपनी buccal cavity में चीक के बीच में लिप या गम के बीच में इंसर्ट करते हैं, और आफ्टर इंसर्शन इसमें से हमारा एपीआई रिलीज होता है। बकल टैबलेट हमने इसलिए बनाई है ताकि हम दो जो बड़े मसले हैं ओरल रूट के साथ, एक इंस्टेबिलिटी का मसला जो हमें दरपेश होता है हमारे स्टमक में, और दूसरा मसला सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन की वजह से, जो कि जब ड्रग लिवर से पास होती है तो वो डिग्रेड हो जाती है। इन दो मसलों को अवॉइड करने के लिए हम जो है ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाते हैं ताकि पेशेंट कंप्लायंस को इंक्रीज किया जा सके।
तो सिंपल बकल टैबलेट्स वो टैबलेट्स जिसको हम बकल कैविटी में प्लेस करते हैं, रखते हैं, और उसके बाद उसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरी कैटेगरी हमने देखी सबलिंगुअल टैबलेट्स की। सबलिंगुअल टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स हैं जिनको हम जुबान के नीचे रखते हैं, क्योंकि जुबान के नीचे बहुत सारी कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स हैं, और उसमें जो है ना वो एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो फॉर्मुलेशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो वहां पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और इस रूट के थ्रू भी जब हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डिलीवर्ड करते हैं बॉडी को, तो दो काम, एक तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से पास नहीं होता इसलिए वो स्टमक में नहीं जाएगा, और दूसरा वो हेपेटिक एक्सपोजर नहीं होगा ड्रग का, लिवर में से पास नहीं होगा। जब नहीं होगा तो डिग्रेडेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। ये फायदे हैं। और इसके लिए जो एपीआई हम यूज करते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम सबलिंगुअल या बकल या ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स में यूज करते हैं, चूंकि ये हमारे मुंह में ही डिसॉल्व हो जाती है, इससे एक्टिव रिलीज हो जाता है, इसलिए हमें टेस्ट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि जो ड्रग है वो कड़वी ना हो, उसका टेस्ट ऐसा ना हो जिससे पेशेंट कंप्लायंस डिक्रीज हो या फिर पेशेंट को इरिटेशन फील हो। और ये जो ड्रग्स है इसमें हम लो डोज ड्रग को प्रेफर करते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है ओरली डिसॉल्विंग टैबलेट्स या ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स, जो कि आप जबान के ऊपर रखते हैं और विद इन 60 सेकेंड्स ड्रग डिसॉल्व हो जाती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रिलीज हो जाता है उसमें से। इसमें भी वो ड्रग यूज की जाती है जो ज्यादा, जिनका टेस्ट बेटर ना हो। Now, students, fourth category of the tablet is effervescent tablets. Effervescence is defined as the evolution of bubbles of gas from a liquid as a result of chemical reaction. Effervescence एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस बबल्स की फॉर्म में लिक्विड से बाहर आती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एफरवेसेंस, और ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। Effervescent tablets are prepared by compressing granular effervescent salts that release gas when in contact with water. These tablets generally contain medicinal substances that dissolve rapidly when added to water. स्टूडेंट्स, एफरवेसेंट टैबलेट्स तैयार की जाती है, हम ग्रेन्स बनाते हैं, ग्रेन्यूलर मटेरियल बनाते हैं एफरवेसेंट सॉल्ट्स का, और फिर वो सॉल्ट्स हम टैबलेट उसकी बनाते हैं, और वो टैबलेट जब पानी के साथ कांटेक्ट में आती है तो फिर उसमें से बबल्स की फॉर्म में क्या निकल रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है। Effervescent tablets are designed for dispersion or dissolution in water before administration. स्टूडेंट्स, ये जो एफरवेसेंट टैबलेट्स है इसको पहले हम पानी लेते हैं, उस पानी में टैबलेट डालते हैं, जब वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है पानी में, एफरवेसेंस हो जाता है, फिर उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। मींस द टैबलेट विल हैव टू बी एडेड इनटू वाटर प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बॉडी में लेने से पहले हमें पानी में डालना पड़ता है ताकि एफरवेसेंस हो जाए, और उस एफरवेसेंस की वजह से ड्रग जो है ना वो डिसॉल्व हो जाए उसमें। These tablets provide rapid drug dissolution into the solution and immediate availability for absorption upon administration. Students, आपको पता है कि solid dosage form, और अगर हम solid और liquid dosage form को compare करें तो liquid dosage form अगर हम लिक्विड फॉर्म में हो, सॉल्यूशन फॉर्म में हो, तो बायो अवेलेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए एफरवेसेंट टैबलेट्स जब हम पानी में डालेंगे उसका सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन यूज करेंगे तो सॉलिड के मुकाबले में जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो सॉल्यूशन से जल्दी आ जाता है। एपीआई शुड बी सॉल्युबल और इजिली डिस्पर्सिबल इन वाटर। एपीआई सॉल्युबल होना चाहिए या फिर इजिली डिस्पर्स होना चाहिए पानी के अंदर। Drug should absorb through the stomach and must not be acid labile. ऐसी ड्रग्स फॉर्मुलेट करते हैं जो ज्यादातर, क्योंकि हम जब पानी लेंगे वो सॉल्यूशन लेंगे, वो डिस्पर्शन लेंगे ड्रग का जिसमें हमने एफरवेसेंट ड्रग डाली है, तो वो हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाएगा तो जो ड्रग होगा उसको एसिड लेबाइल नहीं होना चाहिए, एसिड का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। In addition to the drug substance and necessary functional excipients, these tablets contain an acidic
एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटिंग बेसिक कंपोनेंट्स। मींस ड्रग की कोर फॉर्मुलेशन में एक तो फंक्शनल एक्सिपिएंट्स हैं जो कंपैटिबल होते हैं हमारे एक्टिव के साथ, उसके अलावा हमें दो चीजें यूज करनी है जो कि मस्ट है, एक एसिड यूज करना है और एक बेस यूज करना है। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो एफरवेसेंस होगी और फिर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होगी बबल्स के फॉर्म में। द एसिडिक कंपोनेंट में बी टार्टेरिक, सिट्रिक और सक्सेनिक एसिड, while the basic component is usually sodium carbonate और बाइकार्बोनेट। जो हमारा एसिडिक कंपोनेंट होता है उसमें हम टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या सक्सेनिक एसिड यूज करते हैं, जबकि बेसिक कंपोनेंट के लिए हम सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। These components in the presence of water liberate carbon dioxide which rapidly disintegrate the tablet and produce effervescence। ये जो components हैं हमारे एसिडिक और बेसिक components, ये पानी की मौजूदगी में इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से हमारी टैबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और एफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है। एफरवेसेंस को हमने प्रीवियसली डिफाइन किया है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बबल्स निकले गैस की फॉर्म। Zentek effervescent tablet for the relief of gastric acidity। ये Zentek एक effervescent tablet है जो हम gastric acidity problems में यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेबलेट स्टूडेंट, हाइपोडर्मिक टेबलेट। हाइपोडर्मिक tablets are no longer available in the United States or all over the world. They were originally used by physicians in extemporaneous preparation of parenteral solutions। स्टूडेंट्स ये टैबलेट जो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स थी ये एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन में यूज की जाती थी। मतलब ये ऐसी टैबलेट थी कि टैबलेट्स होती थी, उस टैबलेट को हम पानी में डालते थे, उसका सॉल्यूशन बन जाए और फिर उस सॉल्यूशन को हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करते थे। दैट्स व्हाई दीज टैबलेट्स आर कॉल्ड हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। The required number of tablets are dissolved in suitable vehicle, sterility attained and then injection is performed। मीन्स हम जितना भी डोज रिक्वायर्ड होती है एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन का मतलब है कि जब प्रिस्क्रिप्शन आती है फार्मासिस्ट के पास तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिस्क्रिप्शन एट दैट टाइम वो कंपाउंडिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है ड्रग की, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टैबलेट्स को वो डिसॉल्व करता है सुइटेबल व्हीकल में जिसमें वो सॉल्युबल हो और फिर जब उसकी स्टेरिलिटी मेंटेन हो जाए, मतलब स्टेराइल हो, उसमें कोई माइक्रो, क्योंकि हम इसको इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं तो जैसे कि आपको पता होगा जब कोई आप इंजेक्शन के थ्रू कोई डोजेज फॉर्म लेते हैं तो उसके लिए स्टेरिलिटी का होना मस्ट है। Parenteral solutions are available, therefore there is no justification for the use of hypodermic tablets। चूंकि आजकल parenteral solutions available है, highly sophisticated machine है, sterility के हमारे पास processes हैं, उनके बाद जो solutions बनते हैं वो sterile होते हैं और उसको हम injection purpose में use कर सकते हैं। इसलिए hypodermic tablets बनाना, फिर उन tablets का solution बनाना, फिर उसकी sterility maintain रखना और फिर उसको use करना तो एक फिजिबल प्रोसेस नहीं है। इसलिए जब हमारे पास पेरेंटल सॉल्यूशंस आ गए तो उसके बाद ये हाइपोडर्मिक टैबलेट्स बनना बंद हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। Dispensing tablets which are to be added to water or other solvent to make a solution containing a fixed concentration of the active ingredients are known as dispensing tablets। Same टैबलेट्स विच आर टू बी एडेड, वो टैबलेट्स जिसको आपने ऐड करना है वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में जिसमें उसका सॉल्यूशन बन जाए, टैबलेट में फिक्स कंसंट्रेशन होती है एक्टिव की, ऐसी टैबलेट्स को हम कहते हैं डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। मोस्ट कॉमनली दे आर यूज टू प्रिपेयर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। ये जो टैबलेट्स बनती थी ये किस लिए बनती थी? ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस बनाने के लिए बनती थी। टैबलेट बनाते थे हम, फिर उस टैबलेट्स को हम सुइटेबल सॉल्वेंट में डाल के उसका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाते थे, जैसे कि मर्क्यूरिक क्लोराइड और साइनाइड। और ये डाइल्यूशंस जो होती थी 1/1000 टाइम्स जो है ना इसको डाइल्यूट करना पड़ता था। द टैबलेट्स आर यूजुअली लार्ज, ये टैबलेट लार्ज होती है एंड कंटेन नो इनसॉल्युबल मटेरियल सिंस दे विल बी मेड इनटू अ क्लियर सॉल्यूशन। इनकी फॉर्मुलेशन में कोई ऐसा मटेरियल नहीं इंक्लूड कर सकते आप जो सॉल्युबल ना हो,
because after the administration into the water or addition into the water, there must be a formation of clear solution. एक clear solution बनना चाहिए जब हम dispensing tablets को add करते हैं suitable vehicle के अंदर जिसमें वो soluble हो. Because of their toxic nature, चूंकि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं तो ये टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इन टैबलेट्स की शेप जो आम कन्वेंशनल टैबलेट्स होती है उनसे बिल्कुल अनयूजुअल चेंज होती है. जैसे कि आप इसको डायमंड, ट्रायंगल और कॉफिन शेप में बनाया जाता है ताकि पता चले इसकी शेप अनयूजुअल हो, टैबलेट की तरह ना हो, जो देखने वाला है वो समझ जाए कि ये एक टॉक्सिक टैबलेट है. In order to call further attention to their toxicity, they are marked either with word poison, ताकि मजीद एहतियात बरतने के लिए, मजीद अटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए कि ये टॉक्सिक है, अवेयरनेस प्रोड्यूस करने के लिए इनके ऊपर मार्किंग की जाती थी, या तो इनके ऊपर पॉइजन लिख दिया जाता था, और विद स्कल एंड क्रॉस बोन, या इसके ऊपर डांचा और क्रॉस बोन्स बना दिए जाते थे जो कि हजार्ड साइन है, जिससे हमें इंडिकेशन हो कि ये चीज डेंजर है. Next, students, category of the tablets is vaginal tablets. Tablets have been designed for vaginal administration in the treatment of local infections as well as for systemic absorption and absorption into the vaginal tissues. Means those tablets which are administered through vaginal routes are called vaginal tablets. Vaginal tablets are also called vaginal inserts. These are uncoated bullet-shaped or ovoid tablets inserted into the vagina for local effects. They are prepared by compression and shaped to fit snugly, means tightly, on plastic inserter devices that accompany the product. इसका मतलब ये स्टूडेंट के इस टैबलेट्स को डिलीवर करने के लिए एक प्लास्टिक इंसर्टर आता है. उस प्लास्टिक इंसर्टर में हम क्या करते हैं, टैबलेट को प्लेस करते हैं और देन वेजाइनल रूट के थ्रू इंसर्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर. इसके थ्रू हम लोकल इफेक्ट भी हासिल कर सकते हैं, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है वेजाइनल टैबलेट से. Vaginal tablets contain antibacterial for the treatment of non-specific vaginitis caused by Haemophilus vaginalis, or antifungals for the treatment of vulvovaginitis, candidiasis caused by Candida albicans and related species. Means जो local problems है vagina के infections हैं, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो, चाहे वो फंजाई की वजह से हो, उन infections को treat करने के लिए हम vaginal tablets यूज कर सकते हैं. जो मोस्टली इसका मेन पर्पस है लोकलाइज थेरेपी के, अगर वेजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम वेजाइनल टैबलेट्स यूज कर सकते हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ मोल्डेड टैबलेट्स और टैबलेट ट्राइचूरेट. Tablet triturates are usually made from moist material using a triturate mold that gives them the shape of cut sections of a cylinder. Means ये ऐसी टैबलेट है, हम एक डैम्प मास बनाते हैं, फिर उस डैम्प मास को मोल्ड में रखते हैं. मोल्ड प्री डिफाइंड डाई होती है जिसमें हम वो मॉइस्ट मटेरियल रखेंगे तो उसी डाई की शेप की हमारे पास क्या बन जाएगी, टैबलेट बन जाएगी. सच टैबलेट मस्ट बी कंप्लीटली एंड रैपिडली सॉल्युबल. ये टैबलेट सॉल्युबल होनी चाहिए. The problem arising from compression of these tablets is the failure to find a lubricant that is completely water soluble. इन tablets को स्टूडेंट हम compression से नहीं बनाते, हम molding से बनाते हैं. This method is called molding. ये जो molded tablet बनाने का तरीका है इसको molding कहते हैं. इसमें एक डाइज होती है डिफरेंट टाइप्स की, उन डाइज में हम फिल करते हैं मॉइस्ट या डैम्प पाउडर को और फिर उस शेप की हमारे पास टैबलेट आ जाती है. ये सॉफ्ट टैबलेट्स होती है और ये कंप्लीटली सॉल्युबल होनी चाहिए. और इसमें कंप्रेशन हम इसमें इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ऐसा वाटर सॉल्युबल कोई लुब्रिकेंट हमारे पास नहीं है. मोल्डेड टैबलेट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स सो दैट द टैबलेट्स आर कंप्लीटली एंड रैपिडली सॉल्युबल. जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ये बात. They contain, in addition to the drug, an excipient or base of lactose, dextrose, sucrose, mannitol or other rapidly soluble materials or mixture of these ingredients. ये इनकी formulation में होती है ये materials, mannitol, sucrose, dextrose.
आफ्टर द एक्सिपिएंट इज ब्लेंडेड विद द ड्रग, जब एक्सिपिएंट को ड्रग के साथ ब्लेंड या मिक्स किया जाता है, पाउडर मिक्स को मॉइस्ट किया जाता है किसी सॉल्वेंट के साथ, और मोस्टली अल्कोहल यूज किया जाता है या अदर वोलेटाइल सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हैं जैसे एसीटोन, हाइड्रोकार्बन्स माइट आल्सो बी यूज। तो डिफरेंट टाइप्स के आप इसमें सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं मॉइस्ट करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, डैम्प मास बनाने के लिए। ये एक डायग्राम है, ये मोल्ड है स्टूडेंट, ये मोल्ड है पूरा। इस मोल्ड में पाउडर फिल किया जाता है, डैम्प पाउडर फिल करते हैं, और फिर इसी के शेप की हमारे पास सॉफ्ट सॉफ्ट टैबलेट्स बाहर आती है, और उन सॉफ्ट टैबलेट्स को हम क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं। जैसे कि आपने एक डाई ली, उसमें मिट्टी को आप क्या करें, पानी में मिलाएं, उसको चिकना बनाएं, और फिर उससे जिस तरह की शेप आप चाहें बना दे, इसको हम कहते हैं मोल्डिंग। तो मोल्डिंग मशीनें इंडस्ट्री लेवल पर भी हमारे पास मोल्डिंग मशीन्स भी अवेलेबल होती है, लेकिन मोस्टली टैबलेट्स जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है वो कंप्रेशन से बनती है। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टैबलेट्स कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। के जो टैबलेट है, चाहे आप कंप्रेशन से बनाओ, वेट ग्रेनुलेशन से बनाओ, ड्राई ग्रेनुलेशन से बनाओ, फिर उसको कंप्रेस करो, जो भी तरीका आप अप्लाई करते हैं, वट एवर मैथड यू अप्लाइड, उसमें से जो ड्रग रिलीज होता है उसका कुछ पैटर्न होता है, और उस पैटर्न के बिहाफ पर हमने टैबलेट्स की कुछ कैटेगरीज बनाई है। जैसे कि सबसे पहले इमीडिएट रिलीज टैबलेट, मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल टैबलेट्स फॉल इन दिस कैटेगरी। तमाम आम रूटीन की जो टैबलेट हम यूज करते हैं वो इमीडिएट रिलीज है। इमीडिएट रिलीज, by immediate release we mean that when the tablet is administered into the body and it comes in contact with the body fluid, the active material start releasing from the tablet। इसको हम कहते हैं इमीडिएट रिलीज, मतलब फौरन इसका एक्टिव क्या हो जाता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसकी अब्रीवेशन हम इसको IR से लिखते हैं, इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास CR, मतलब कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट। These tablets are designed to release drugs at predetermined and controlled rate। Means पहले से हमने रेट डिटरमाइंड किया हुआ होता है कि कितनी ड्रग रिलीज होगी। ड्रग रिलीज प्रोफाइल मतलब हमारे कंट्रोल में होता है। ये यूज किया जाता है क्रोनिक एलिमेंट्स, मतलब क्रोनिक डिजीज जो होती है जिसमें आपको रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म थेरेपी में जो मेडिकेशंस यूज की जाती है, तो हम उसको फिर कंट्रोल रिलीज प्रोफाइल के साथ टैबलेट्स में डिजाइन करते हैं। द रिलीज रेट इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग स्लो रिलीज मैट्रिक्स। इसमें जो रिलीज रेट है वो पॉलीमर से कंट्रोल किया जाता है, या फिर उसके जैसे कि कार्नुबा वैक्स यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं, या फिर उसके ऊपर इनसॉल्युबल कोटिंग कर दी जाती है। तो पहली कैटेगरी थी इमीडिएट रिलीज, दूसरी है कंट्रोल्ड रिलीज जिसमें ड्रग रिलीज प्रोफाइल का जो रेट है वो प्री डिटरमाइंड है और कंट्रोल्ड फैशन में। फिर आती है एक्सटेंडेड, या फिर इसका दूसरा नाम सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, XR और SR। Extended release tablets are designed to release drug over an extended period of time but not necessary at predetermined or controlled rate। मीन्स ड्रग की जो रिलीज पैटर्न है वो जरूरी नहीं है कि हमें पहले से कैलकुलेट किया हो या हमें पता हो कि क्या किस तरह का इसका रिलीज पैटर्न होगा, बट जो ड्रग रिलीज होगी वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रिलीज होगी। ये भी क्रॉनिक एलिमेंट्स में यूज की जाती है। क्रॉनिक डिजीज जो होती है जिसके लिए हमें लॉन्ग टर्म्स मेडिसिन लेनी पड़ती है, उन कंडीशंस में ये एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग्स या सस्टेन्ड रिलीज ड्रग्स यूज की जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी है डिलेड रिलीज। इसकी एग्जांपल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स है वो असल में एक एग्जांपल है डिलेड रिलीज टैबलेट की, और ये उन ड्रग्स के लिए हम अप्लाई करते हैं जिनकी अब्जॉर्प्शन स्टमक से, जो स्टमक में डिग्रेड होते हो जो ड्रग्स, उनके उनके ऊपर हम एंटेरिक कोट टैबलेट लगा देते हैं, और फिर वो जो रिलीज होता है ड्रग का वो डिले होता है, मतलब टैबलेट जाती है बॉडी में, एग्जैक्ट एट दैट टाइम ड्रग रिलीज नहीं होता, आफ्टर सम टाइम उसमें से क्या हो जाता है, ड्रग रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम वो कैटेगरीज थी जिसको हमने डिस्कस किया टैबलेट्स की। हमने स्टार्ट किया था फिजिकल ये लेक्चर। फिजिकल लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टैबलेट्स क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने। फिर किसी टैबलेट डोजेज फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है या उसके जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होने चाहिए वो डिस्कस की हमने।
फिर हमने टैबलेट्स के टाइप्स को डिस्कस किया, और उसी की कंटिन्यूएशन में हमने फिर देखा कि बकल टैबलेट्स फिर हमने डिस्कस किया, बकल टैबलेट्स के बाद सबलिंगुअल टैबलेट्स एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। फिजिकली क्लासेस में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, बट जब अपकमिंग जो फिजिकल क्लास होगी इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स क्या है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।